بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم کرنے جا رہے ہیں کویشچن نمبر 5 ایکسرسائز 1.2 کا۔ اس سے لاسٹ لیکچر تک ہم لوگوں نے کویشچن نمبر 4 تک سالو کر لیا ہے۔ اگر اسٹوڈینٹ آپ لوگوں نے ہماری پریویس لیکچرز نہیں سنے تو اس کا جو لنک ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اوپر دیکھیں آپ کے پاس ہے لنک، ہم نے دیا ہوا ہے اسی ویڈیو کے اندر، اس کو دیکھیں اور اس کو لازمی سنیں، کیونکہ کویشچن نمبر 5 جو ہے 6 اور 7 ایکسرسائز 1.2 کے کویشچن نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے، اس کو لازمی سنیں اسٹوڈنٹ۔ آئے ہم لوگ کویشچن نمبر 5 کو سالو کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 میں ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ ویلیو دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکس اور وائی کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ذرا غور کریں، آپ کے پاس ہے 1 پلس ایوٹا کا ہول اسکوائر 2 مائنس ایوٹا۔ تو سب سے پہلے کیا آ رہا ہے اسٹوڈنٹ؟ 1 پلس ایوٹا کا ہول اسکوائر، اے پلس بی کا ہول اسکوائر۔ اسٹوڈنٹ فارمولا یاد ہے، لکھا بھی ہوا ہے میں نے، اے پلس بی کا ہول اسکوائر کس کے اکول ہوتا ہے؟ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2 اے بی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ یہی فارمولا ہم یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں اے اور اے کا اسکوائر پلس بی کا اسکوائر پلس 2ab، اے ہمارے پاس 1 ہے اور بی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایوٹا ہے اسٹوڈنٹ۔ فریکشن میں دیکھیں 2 مائنس ایوٹا، اسٹوڈنٹ ایسے ہی لکھیں گے ہم لوگ، اکول ٹو ایکس پلس ایوٹا وائی۔ تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ فریکشن میں جب بھی ایوٹا آتا ہے اس کو ریشنلائز بھی کرتے ہیں، لیکن آگے پہلے ہم اس کا اسکوائر کو ختم کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم فریکشن والے ٹرم کو سالو کریں گے۔ تو 1 کا اسکوائر اسٹوڈنٹ 1 ہوتا ہے، ایوٹا اسکوائر آپ کو پتا ہے -1 ہے، 2 کو ایوٹا سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ایوٹا آئے گا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ فریکشن میں اسٹوڈنٹ آ گیا 2 مائنس ایوٹا، اب پلس یہ مائنس، تو پلس مائنس اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنس ہوتا ہے۔ اگلے اسٹیپ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ؟ 1 minus 1 plus 2 iota is equal to x plus iota y۔ نیچے فریکشن میں اسی طرح 2 minus iota۔ تو اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ 1 minus 1 ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا اسٹوڈنٹ؟ اس کو کینسل کر دیں گے، 1 minus 1 کو کینسل کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا 2 iota۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ، اب کیا کریں گے ہم لوگ؟ 2 minus iota ہے، فریکشن میں iota ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ سولو کرنے کا طریقہ وہی، فریکشن میں ایوٹا جب بھی آئے گا تو کیا کریں گے جی؟ ریشنلائز کریں گے اس کو، تو ہم لکھیں گے 2 ایوٹا اوور 2 مائنس ایوٹا از اکول ٹو آپ کے پاس ہے ایکس پلس ایوٹا وائی۔ اس کو نہیں چھیڑنا آپ لوگوں نے، اس کو ایسے رہنے دینا، ریئل اور امیجنری پارٹ کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے ایسے رہنے دیں اس کو، یہ آلریڈی علیحدہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب؟ 2 ایوٹا 2 مائنس ایوٹا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ یہ کینسل ہو کے صرف 2 ایوٹا بچ گیا۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں اس کو ریشنلائز کریں، 2 پلس ایوٹا 2 پلس ایوٹا، یعنی ریشنلائز میں کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سائن چینج کر دیتے ہیں، صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ سائن چینج کر کے اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کرانا، اسی کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا۔ تو آئے ایکس پلس ایوٹا وائی کو ایسے ہی لکھتے ہیں، اوپر والی ٹرم اسٹوڈنٹ اوپر والے سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، 2 پلس ایوٹا ایسے ہی، نیچے اے کا اسکوائر اسٹوڈنٹ مائنس بی کا اسکوائر۔ اسٹوڈنٹ فارمولا آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ والا، اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر کا، جب بھی فریکشن میں ریشنلائز ہوتا ہے تو اے کا اسکوائر مائنس بی کے اسکوائر کا فارمولا یوز ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آگے ایکس پلس ایوٹا وائی ایسے ہی آگے، جس کو اسٹوڈنٹ 2 ایوٹا اندر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کریں گے، 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو اسٹوڈنٹ کیا آگے آپ کے پاس 4 آئے گا، 4۔ 2 کو ایوٹا سے ملٹیپلائی کریں 2 ایوٹا کا اسکوائر، ایوٹا کو ایوٹا سے ملٹیپلائی کریں گے ایوٹا اسکوائر ہوتا ہے، اوور 2 کا اسکوائر 4 ایوٹا اسکوائر -1 ہوتا ہے، تو یہ آگے آپ کے پاس ایکس پلس ایوٹا وائی۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیں 4 ایوٹا اسکوائر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ -1، -1 اسٹوڈنٹ کیا ہوگا؟ پلس ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ایکس پلس ایوٹا وائی آپ کے پاس، دیکھیں غور سے، یہ پلس یہ مائنس تو کیا ہو جائے گا اسٹوڈنٹ؟ مائنس ہو جائے گا، کیونکہ اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ریئل پارٹ ہے تو ریئل کو میں پہلے لکھنے لگا اور امیجنری کو انٹرچینج کرنے لگا۔ اسٹوڈنٹ جب جگہ چینج کرتے ہیں، انٹرچینج کرتے ہیں جگہ کو، تو اس وقت سائن چینج نہیں ہوتے، تو آپ کے پاس آ جائے گا -2، یہ 4 ایوٹا بعد میں لکھ لیں گے ہم لوگ۔ اب 4 + 1 کیا ہوگا اسٹوڈنٹ؟ 5، تو 5 جب ہوا ہے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس تو یہ 5 جو ہے وہ دونوں ٹرمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیوائڈ، تو 5 2 کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ، اور 5 جو ہے 4 کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ، تو ہم دونوں کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں،
एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे, देखें ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास -2/5 4/5 इमेजिनरी को अलग है, रियल अलग है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जब भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह आता है तो हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम स्टूडेंट लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट, लिख लिया हमने। अब आपको पता -2/5 क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट। तो रियल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, रियल यानी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, -2/5 इज इक्वल टू एक्स आ। तो ये हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। इमेजिनरी क्या है, योटा योटा से कट जाता है, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया स्टूडेंट, वाई का। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट देखे, सबसे पहले 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, देखें जरा स्टूडेंट गौर से, 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, फिर अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे y अयोटा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है ये मेथड। ये मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक टर्म यहाँ पे पूरी मल्टीप्लाई थी उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। ये जो पहले भी मेथड आपको बता रहा था ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये जो मैं मेथड करवाने जा रहा हूँ ये ज्यादा आसान। लेकिन स्टूडेंट आप ट्राई कीजिएगा उस मेथड को भी, आपको जो इजी लगे वही कर लें। लेकिन मैंने इजी वाला मेथड मैंने करवाया आपको, वो मुश्किल था, ये मैंने आपको इजी वाला मेथड करवा दिया। आए स्टूडेंट देखते हैं, ये पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। स्टूडेंट इस बात का तो आपको पता है, जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आता है तो क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। यानी ये माइनस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नीचे वाली नीचे वाले के साथ होगी। तो क्या आएगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई स्टूडेंट, तरीकाकार वही, 4 को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिखेंगे, फिर 2 यूटा को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिख लेंगे। स्टूडेंट मैंने ऐसे ही किया यहाँ पे जरा गौर करें। ठीक है, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को योटा के साथ 4 योटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 योटा, 2 योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 योटा स्क्वायर आ जाए। अब स्टूडेंट आपको इस बात का भी पता है कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1। तो अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, -1। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसको सॉल्व नहीं आप करेंगे, ऊपर वाली टर्म को पहले करते हैं। अब ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, रियल पार्ट रियल में प्लस होता है स्टूडेंट, और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो 4 + 2 इमेजिनरी है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखें अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1। अयोटा स्क्वायर -1, ये प्लस ये माइनस तो क्या आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, 4 में से -2 निकाले स्टूडेंट क्या बचेगा, +2 बचेगा। अब स्टूडेंट इसको अलग अलग कर लें। ठीक है, 4 में से 2 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 भी 2 के साथ डिवाइड होगा और 6 भी क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड होगा। जब ये आपस में डिवाइड होंगे स्टूडेंट, 2 2 से कट गया, 2 3 जा 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास ये बच गया बात, तो ये क्या बचेगा, 3 अयोटा। अब स्टूडेंट देखें रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम बड़ी इजीली इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। रियल को रियल में के इक्वल लिख लेंगे और यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसके कोएफिशिएंट आपस में लिखे जाएंगे, यानी अयोटा के कोएफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 अयोटा y, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू 1 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, और y हमारे पास क्या निकला है, ऑलरेडी 3 निकला है। देखिए स्टूडेंट ये जो मैंने मेथड अडॉप्ट किया इंतहाई इजी मेथड है, इसको आप देखें और इसी को सॉल्व करें, ज्यादा इजी है। इसमें से हमने x और वैल्यू y की वैल्यू निकाली, किस तरह, सिर्फ और सिर्फ टर्म को रैशनलाइज करके। ठीक है, आए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 7 की तरफ चलते हैं। आए तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आएगा। देखिए स्टूडेंट जैसे ए है 1 से मल्टीप्लाई होगा, बी
ए जो है वो 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा मेथड जो है ना मुश्किल है। आप क्या करें, जिस तरह लास्ट मेथड किया था उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर स्टूडेंट, ये टर्म क्या हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब वही स्टूडेंट के फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 1 + 3 आयोटा। स्टूडेंट जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आयोटा आता है तो क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म स्टूडेंट क्या हो जाएगी नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे स्टूडेंट देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, -8 को पकड़ेंगे दोनों के साथ लिखेंगे, फिर 11 को आयोटा को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, -8 को 1 के साथ -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। ठीक है, इसी तरह 11 को आयोटा को 1 के साथ किया, 11 आयोटा आ गया, 11 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 33। आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास देखें ये हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, आयोटा का भी क्या आ गया स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1, तो ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 1 + 9 कितना हो गया स्टूडेंट 1 + 9 10। नीचे वाली टर्म तो सॉल्व होगी। ऊपर वाली देखें -8 को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, फिर 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह स्टूडेंट 11 को 1 के साथ, फिर 11 को 3 के साथ। अब आयोटा स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है स्टूडेंट। तो ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट को इकट्ठा कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 24 आयोटा या 11 ही होता है, 24 + 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 35 आयोटा। अब स्टूडेंट देखिए रियल में से रियल को प्लस किया, 33 में से 8 निकालेंगे, आपके पास क्या बचेगा 25। ठीक है, 25/10, 35/10 आ। तो स्टूडेंट क्या किया हम लोगों ने, रियल को रियल में प्लस किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये टेबल कौन सा स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग, 5 के टेबल में कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। ये भी 5 के टेबल में कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो ये क्योंकि 10 जो है वो दोनों से डिवाइड होगा ज्यादा इसलिए लिख लिया इसको। अब देखिए ये 5/2 आ गया, ये 7/2 आ गया, 7 आयोटा। अब स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी क्या हो गया अलग। अब आप कंपेयर कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, और रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट, a = 5/2। ये हमारे पास स्टूडेंट कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल के इक्वल आ गया। और इमेजिनरी पार्ट ये है स्टूडेंट आपके पास, ये आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो b आयोटा = 7/2, साथ क्या आ गया आयोटा आ गया। आयोटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, जब कंपेयर करते हैं तो b आपके पास क्या आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, तो सो हम लोगों ने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट हम लोगों ने 1.2 आज कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट आपसे, आप कमेंट में पूछें, हम आप उसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।